Hello Astrogrammers, this is my fourth video lecture series on CSS. In this video lecture series, we covered what is pseudo classes and what is pseudo elements. So, first of all, what is pseudo classes? A pseudo classes is used to define a special state of an element. In pseudo classes, we don't need to use JavaScript or any other scripting for effects. So, for example, style an element when a user mouse over it, okay, and the second is style visited and unvisited link differentially. Style an element when it gets focused. Okay, what is the pseudo syntax of pseudo classes? So syntax होता है सबसे पहले हम selector and उसके बाद and pseudo classes bracket open होगा property and its value bracket close. So what is pseudo classes value and its description also in this slide. So there are several pseudo classes value. First is link, second is visited, third is hover, fourth is active, and fifth is first add. Okay, so link. हम इसको स्पेशल टाइप का ये एक होता है, यूनिवर्सल लिंक होता है एंड विजिटेड ये हमको ये बताता है कि हम किस लिंक पे विजिटेड कर चुके हैं, किस पे नहीं विजिटेड कर चुके हैं. होवर. Use this class to add a special style to an element when you mouse over it. Means कि आप किसी भी लिंक पे या फिर किसी भी चीज पे आप होवर करते हो तो उसकी स्टाइलिंग चेंज होना. एंड इसके बाद है एक्टिव. यूज दिस क्लास टू add special style to an active element. Okay, and last is first class. Use this class to add special style to an element that is the first style of some other element. Okay, so pseudo elements. CSS pseudo elements are used to special effects to some selectors. It is used to style a specific part of an element. Okay, so syntax of pseudo elements same as it is selector colon pseudo element sorry and braces open property and its value and this is close. Okay. What is pseudo elements values and description? So there are basically four types of pseudo elements, and first is first line, second is first letter, third is before, and fourth one is after. So what is first line pseudo element? Use this element to add a special style to the first time of the text in a selector. And second is first letter. Use this element to add a special style to the first letter of the text in a selector. Okay. And third is before. Use this element to insert some content before an element. And last one is after. Use this element to insert some content after the element. Okay. Now we are moving to some examples of pseudo classes and pseudo elements. So हम सबसे पहले अपना एडिटर ओपन करते हैं. एडिटर ओपन कर लिया. ओके, न्यू टैब ओपन करिए और इसको सेव कर लिया sudo से. ओके, एंड सिंपल HTML टाइटल में मैंने pseudo classes दे दिया. ओके, एंड आइए हम कुछ प्रॉपर्टी देते हैं. a href टैग हमने सबसे पहले href टैग दिया. ओके, ajax डॉट html मेरे पास एक ajax डॉट html से फाइल है. मैंने यहाँ पे ajax ट्यूटोरियल. ओके, तो यस ओके लाइक ग्रेट. एंड सबसे पहले हम इसको चेक कर रहे थे कि हाँ ये चीज़ आ रही है कि नहीं हमारे वेब पेज पे. इसको आनी चाहिए. अरे परफेक्ट आ रही है. सो सबसे पहले हम स्टाइल टैग ओपन करेंगे. स्टाइल टैग के अंदर एक एक करके हम सारे इसके सूडो क्लासेस देखते हैं. हमारे फर्स्ट थी. ओके, जूम करके गाड़ी को एक सेकेंड. हाँ, लिंक. ओके, सो ए लिंक. ओके, कलर इज कुछ भी रखते हैं पिंक. ये एज इट इज शो होगा नहीं. ए इस तरीके से विजिटेड. ओके, विजिटेड कलर मैंने दे दिया ब्लू. सो नाउ लेट्स चेक इट आउट कि आता है कि नहीं.
लिंक विजिटेड है, इसको देखिए हो चुका है। क्लिक करने पर Ajax का पेज भी ओपन होगा, Ajax के पेज से कोई मिस नहीं है। एंड होवो, ओके, वो पर जैसे क्लिक करते हैं तो हम कलर रेड दे देते हैं। ओके, सिंपल है। इसको रिफ्रेश किया, मीन्स होवर करते हैं कलर चेंज हो रहा है। एंड सो अब हम एक और चीज देखते हैं, थोड़ा सा स्टाइल अलग है वो। तो हम डिव टैग देते हैं। आने वाली में वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको हर एक चीज बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिव एंड स्पैन। एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है डिव एंड स्पैन का। एंड हर एक टैग के बारे में आपको एक स्पेशल एक वीडियो बना के दूंगा जल्दी। तो हम डिव ले लेते हैं, डिव के बाद एक पैराग्राफ टैग ले लिया इसमें। ओके, तो दिस इज पैराग्राफ, एक एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग थोड़ा सा। सो प्लीज ओवर मी। ओके, तो हम सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ कंटेंट शो हो रहा होगा। अरे हाँ, क्या आपको ये दिस इज प्लीज ओवर एंड दिस इज पैराग्राफ। ओके, तो मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ इससे कि ओके, सो फर्स्टली हम डिस्प्ले नन, सॉरी। ओके, अब हम सेव करते हैं। सेव करते ही हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, तो ये गायब हो चुका है हमारा प्लीज दिस इज पैराग्राफ। जो पैराग्राफ के अंदर कंटेंट रखा था वो गायब हो चुका है। मीन्स इसकी हमने प्रॉपर्टी लगाई डिस्प्ले नन। दैट मीन्स कि ये हमें डिस्प्ले नहीं होगा जब तक हम ना चाहें। ओके, सो हम कुछ प्रॉपर्टी देते हैं इस पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, मैंने इसको दे दिया येलो। ओके, पैडिंग दे दी 20 पिक्सल, परफेक्ट। एंड अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं प्लीज ओवर मी पे क्लिक करूँ, ठीक, तो मुझे मेरा दिस इज पैराग्राफ दिखे। सो सिंपल है गाइस, हम डिव लेंगे एंड डिव के बाद हम सिंपल ओके ओके 6 में, क्योंकि क्लास नहीं है एलिमेंट है, हम सिंपल से लेंगे ओवर के बाद डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, अब हम एक बार पेज रिफ्रेश करके देखते हैं। ये चीज नहीं वर्क कर रही। It's not working. Oh, what's the property though? Okay, second. Not right. हाँ, yeah. It's perfect. Means जैसे ही हम div पे होवर करते हैं तो उसका पैराग्राफ की जो प्रॉपर्टी है, जो हमने पैराग्राफ में कंटेंट रखा था वो डिस्प्ले हो जाए। ओके, सो ये सिंपल सा है। जैसे हमने प्लीज होवर में तो क्लिक किया, होवर लेके गए, हमें कंटेंट शो रहा है। जैसे हम उससे हटा रहे हैं कंटेंट गायब हो जा रहा है अपने आप ऑटोमेटिक। ये देखो, simple. This is a basic example of pseudo classes. Now move on to some example of pseudo elements. And first of all, create a new file which name is pseudo element. Okay, and save HTML code pseudo. Okay, pseudo element. ठीक है, and simple सा है। इसमें हम कुछ examples देखते हैं। Pseudo elements basically 4 types होते हैं: first letter, first class, after and before. So हम इसमें pseudo class के 2 example देखते हैं। Pseudo classes and sorry, first letter and first, I don't know, I देखते हैं। Okay, first letter and first line. Okay, so
That's right. This is first line code. Okay, सिंपल है स्टाइल टैग की एंड ये किस टैग के समझ सिलेक्टर के अंदर h1 एंड के एलिमेंट दे देते हैं. ओके सो हम सूडो एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने का वे क्या था, सिंटैक्स क्या था, सेलेक्टर सूडो एलिमेंट. ओके दैट मींस कि हम कौन सा सूडो एलिमेंट यूज कर रहे हैं. फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, एलिफ्टर एंड बिफोर, इन चारों से कौन सा यूज. तो हमने h1 लिया कोलन, हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट लाइन. ओके हम यहाँ सिंपल सा देखते हैं फर्स्ट लाइन. ओके सो कलर रेड. ओके समझे, जस्ट चेक इट आउट करते हैं. ओके सॉरी देखिए दिस इज फर्स्ट लाइन कोड. हमने कहीं पे भी CSS, हाँ मैंने कहीं यहाँ इसके अंदर कोई CSS नहीं यूज करी. मैंने आपको ये बताया कि सूडो एलिमेंट्स के थ्रू आप अपने सेलेक्टर्स में कैसे स्टाइलिंग करते हैं. मैंने मेरा सूडो एलिमेंट का सेलेक्टर था h1 टैग एंड मैंने सूडो एलिमेंट लिया है फर्स्ट लाइन. ओके फर्स्ट लाइन है एंड जस्ट सपोज हम चाहते हैं इसी सूडो एलिमेंट इसी सेलेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट जो है मींस फर्स्ट लेटर वो उसमें हम कुछ स्टाइलिंग करना चाहते हैं. तो फर्स्ट लेटर ओके सिंपल है. फॉन्ट साइज 16. आइए हम चेक करते हैं कि इसका साइज चेंज हुआ कि नहीं. ओके देखिए सिंपल था, हमने फर्स्ट लेटर बना दिया h1 के साथ लेटर के साथ एंड इसका फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल. इसने ऑटोमेटिक जिसका दिस में t का साइज 16 पिक्सल के हिसाब से कर दिया. ओके सो अब हम और CSS में देखते हैं. ओके हम CSS का थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं 46 पिक्सल कर देते हैं. या इस पर दूसरा और हम इसमें से दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर. बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं. So for example so this is first line code जिसमें से हमने इसका जो फर्स्ट लेटर है वो भी हमने यूज कर लिया. ओके एंड इसका हमने फर्स्ट लाइन भी यूज कर लिया. फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर दोनों यूज कर लिया. एक बार हम चेक करते हैं आफ्टर. ओके try content URL. उसको इमेज है grocery dot jpg. Okay so I'll check it out. Yeah it's perfect but some height issue if it's not. Oh sorry. Yeah there's some. ओके हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज इसलिए थोड़ा सा चेंजेस इशू कर रहा है कि फॉन्ट साइज की वजह से ये हमारा इमेज साइज नहीं हो रहा रिफ्रेश. सो हमने एक और है इसकी प्रॉपर्टी एंड लास्ट इज बिफोर. ओके बिफोर का भी सेम है एज इट इज होता है कंटेंट यूआर. बिफोर और आफ्टर ये दो सूडो एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका यूज हम अपने कंटेंट या फिर सेलेक्टर्स में इमेज को ऐड करने के लिए यूज करते हैं. सिंपल सा है grocery dot jpg सिंपल. हम सेव करते हैं. इसे देखिए ये इसके पहले आ रही है एंड सूडो एलिमेंट के बाद पहले इमेज फिर हमारा कंटेंट फिर इमेज. मीन्स हमने आफ्टर बिफोर दोनों प्रॉपर्टी यूज करी. फर्स्ट लेटर की भी मैं यूज करी
इस तरीके से हम सूडो एलिमेंट और सूडो क्लासेस के ऊपर वर्किंग करते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी सूडो क्लासेस एंड एलिमेंट्स के ऊपर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू।